Good morning, my dear students. Happy New Year. How are you all? I hope you are enjoying. Okay, students, there is a suggestion for you. You have to make New Year's goals. What is goal? What do you want to be in your life? What is your aim? Because goals give us direction. They put a powerful force inside us. So, the first thing that you must set a goal in your life कि आपको लाइफ में करना क्या है. Okay, students, today let's start with adverbs. Okay, what are the adverbs? If you remember, we have done this concept in 4th standard. I hope you remember it. An adverb is a word that adds to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. First of all, the main thing is what is an adverb? कि adverb है क्या? ठीक है? This is just a definition because every time we understand with lots of examples. Okay, what the definition says? An adverb is a word which adds to the meaning of a verb, an adjective or another verb. Take an example. The girl walked slowly. Now, adds meaning to the verb walked. कि walked के साथ हमने क्या meaning add किया कि how the girl walked. The girl walked slowly. The man is quite rude. Adds meaning to adjective rude. This was verb. Rude was adjective. We ate the ice cream very fast. Adds meaning to adverb fast. Now this is adverb. हमने क्या meaning add किया? Very. Okay, I hope you understood this. The girl walked slowly. Slowly is an adverb. Quite also and very. Now we are going to do kinds of adverbs. कि adverbs कितनी तरह की होती हैं? Adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time, adverbs of degree. Okay, but we will also do adverbs of frequency. Let's start it. Now see the examples. Read the following sentences and circle the adverbs. You should try now. The little girl is very pretty. Now, what is an adverb? Pretty. Pretty means beautiful. The little girl is very pretty. What word is describing the girl? Pretty. The students read the passage carefully. Now, what is an adverb in this sentence? Carefully. The children felt very lonely. The word is lonely. The children felt very lonely. How are the children feeling? Lonely. So this is also adverb. She regularly goes for cricket coaching sessions. Regularly. अभी जब हम ये टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि रेगुलरली कैसे है. Let's start. Position of adverbs. Neha dances gracefully. Now dances is verb, action word. Adverb gracefully. Sometimes adverbs are used before the verbs. कई बार क्या होता है कि जो हमारी adverbs होती हैं वो verbs से पहले भी आती हैं. See another example here. Neha always comes home from school. Now comes is my verb and always is my adverb. Always is also an adverb. Okay, and comes verb. तो यहाँ पे क्या था कि मेरी जो adverb थी वो verb के बाद थी. But in this sentence the situation is different. I have used adverb before verb. I hope you are understanding very well because मैं अपनी तरफ से पूरा try कर रही हूँ easy method से आपको adverbs clear करने की.
Sometimes adverbs are used after the first part of the verb. Now see again. क्योंकि आपको ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा. Let's see example. They were hardly practicing the play. Were is first part of verb. ये हमारी helping verbs होती है ना, is, am, are, has, have, was, were. Were is first part of verb, hardly adverb, and practicing other part of verb. First part of verb, another part of verb, and this is adverb. Fine. ये हमारी verb होती हैं, लेकिन ये हमारी helping verbs होती हैं, not main verbs. Now kinds of adverbs. Adverb of manner, adverb of place, time, degree, frequency, interrogative, relative. But today we are going to do place, time, degree, frequency. Okay. Adverbs of manner. This is very easy. You can easily identify in the sentence what is the adverb of manner. It tells us how the action take place and answer the question how. आपको एक आंसर दिया जाता है, ठीक है, तो आप माइंड में क्वेश्चन क्रिएट करो उसका कि आप क्या क्वेश्चन बना सकते हो. लाइक द गर्ल वॉकड फास्ट. व्हाट क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड? दैट हाउ डिड द गर्ल वॉक, कि गर्ल ने कैसे वॉक किया. हाउ हमारे अंदर ऐसा तो नहीं आ रहा है व्हेन डिड द गर्ल वॉक, क्योंकि यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है. वेयर डिड द गर्ल वॉक, कि कहाँ पे वॉक किया. नो, कि हमारे अंदर क्वेश्चन अराइज हो रहा है हाउ डिड द गर्ल वॉक. द गर्ल वॉकड फास्ट. द सोल्जर फॉट ब्रेवली. हाउ डिड द सोल्जर फाइट. द सोल्जर फॉट ब्रेवली, कि कैसे किया, ठीक है ना, कि एक्शन कैसे हुआ. यहाँ पे एक्शन फास्ट हुआ, यहाँ पे ब्रेवली. सिंपली, कॉन्फिडेंटली, सैडली, इजीली, हार्डली. ठीक है, क्लियर. कि जहाँ पे हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सबसे पहले आपको मान लो काफ़ी सारे आपको एडवर्ब्स गिवन है, आपको सर्च करना है, फाइंड आउट करना है कि विच इज़ द एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम. तो आप क्वेश्चन बना के देखो कि फास्ट, तो गर्ल कैसे वॉक कर रही है, फास्ट, तो वो हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर. ये मैंने आपको फोर्थ में इसी वे से आपको करवाया हुआ है, अगर आपको याद है तो. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. It tells us the place of action and answer the question where. कि action कहाँ पे हुआ है, action place, and the question arises in our mind that where the action took place. कि action कहाँ हुआ है, यहाँ पे action कैसे हुआ है, यहाँ पर कहाँ हुआ है, place, where. गगन has gone out. गगन बाहर चला गया. Now the place कहाँ पे गया, वो बाहर, out. अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है इसका, तो क्या होगा, वेयर हैज़ गगन गॉन. गगन हैज़ गॉन आउट. फ्लावर्स वर ब्लूमिंग एवरीवेयर इन द स्प्रिंग सीजन. वेयर वर द फ्लावर्स ब्लूमिंग, एवरीवेयर. सो दिस इज़ वेरी इजी. नो नीड टू बी कन्फ्यूज्ड. सिंपल उसका एक क्वेश्चन अपने माइंड में बनाओ और आपको पता चल जाएगा. दिस इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम. Another examples of adverb of place are away, outside, anywhere, inside, upstairs, downstairs, in, out. Now, next is adverbs of time. It indicates the time of an action or sometimes the duration of an action and answer the questions when. कि कब हुआ, time. Yesterday, कल हुआ, early यानी जल्दी हुआ, later यानी बाद में. ठीक है ना, कि हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आता है, व्हेन, कि कब हुआ, कैसे हुआ, हाउ, कहाँ हुआ, वेयर, कब हुआ, व्हेन. ओके, सो दिस इज वेरी इजी. हाउ, वेयर, व्हेन. This represents time, this is place, and how the action done, कि action कैसे हुआ. ठीक है. Now another examples of adverb of time are
ago, today, yet, tomorrow, then, recently, late. Next, now you have to understand very carefully these two types of adverbs. Adverb of degree, adverbs of frequency. अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो बहुत ईजी है, अगर आप केयरलेसली इसको समझोगे तो ये आपके लिए बहुत टफ है. Now first, adverbs of degree. It tells us the intensity of an action and modify an adjective, a verb or another adverb. They are placed before the adjective or adverb and answer the question how much, quantity, how much. दे आर प्लेस्ड बिफोर एन एडजेक्टिव, यानी एक एडजेक्टिव से पहले भी आ सकते हैं और ये एडवर्ब से भी पहले आ सकते हैं, यानी टू एडवर्ब्स भी हो सकती हैं, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था. दे वॉक्ड वेरी फास्ट. वेरी इज ऑल्सो एन एडवर्ब एंड फास्ट इज ऑल्सो एन एडवर्ब. एग्जाम्पल लाइक क्वाइट, नियरली, फुली, क्वाइट. अगेन आई हैव रिटन एक्सट्रीमली, इनफ, हार्डली, फेयरली. The girl spoke quite well and won a prize. Quite well यानी बहुत ज़्यादा अच्छा उसने जो है वो बोला and won a prize. The girl spoke quite well and won a prize. Vinita almost finished the project on time. Vinita almost finished the project on time. यानी विनीता ने ऑलमोस्ट यानी मैक्सिमम अपना प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पर ख़त्म कर लिया. ठीक है. हाउ मच, ऑलमोस्ट. हाउ मच द गर्ल स्पोक क्वाइट यानी बहुत अच्छा बोला. अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू हम और डिफरेंसेस समझेंगे इनके बीच का. नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी से तो आपको यही पता चल रहा होगा ना कि कब. It indicates how often or how frequently an action takes place and answer the question how often यानी कितनी बार. ठीक है. She seldom pays us a visit यानी वो कितनी बार आती है. seldom बहुत कम. seldom का मीनिंग होता है बहुत कम. often का जो है वो ऑपोजिट क्या होता है, seldom. अगर कभी भी आपको ये हो ना कि आपको ऑपोजिट पूछा जाए ऑफन का, सेल्डम, ऑफन, सेल्डम. नलिनी ऑफन प्लेज बैडमिंटन विद हिज ग्रैंडफादर. ऑफन मीन्स मैक्सिमम यानी ज़्यादा टाइम. ऑफन. आप इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करो. ठीक है ना. आपसे पूछता है व्हेन डू यू गो टू द पार्क. आई ऑफन गो टू द पार्क कि मैक्सिमम मैं जाता हूँ पार्क में. ठीक है. आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ एट नाइट बिफोर आई गो टू बेड. ऑलवेज यानी हमेशा. ऑफन मैक्सिमम, सेल्डम बहुत कम. अब आपने क्या समझा इन सेंटेंसेस से कि यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है हाउ मच और यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कब. हाउ ऑफन कितनी बार. ठीक है. अब हम थोड़ा और एग्जांपल्स देख लेते हैं. एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर दीज थिंग्स दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा. मे बी एक दो चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन रह जाए, बट जितना आप एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करोगे, नई नई वर्कशीट्स निकालो. ठीक है. अपनी बुक में भी प्रैक्टिस करो. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. दे हैड नेवर मेट बिफोर. दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेवर. हाउ ऑफन कितनी बार मिले, कभी भी नहीं मिले. नेवर. The soup was extremely hot. This is adverb of degree. Soup कितना, how much hot. Extremely बहुत ज़्यादा. My father works very hard. Degree कितना वर्क करते हैं. How much. Very hard. Christmas is celebrated once a year. Frequency. How often कितनी बार सेलिब्रेट करते हो आप क्रिसमस. Once a year. The child could not be found anywhere. Now, this is clear to you?
जब आपको वर्कशीट मिलेगी तब आप डिफरेंस समझ जाओगे। आपकी बुक में बल्कि इतना नहीं है जितना मैंने इलेबोरेट किया है आपको, ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। द चाइल्ड कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर। एनीवेयर कहीं भी नहीं मिला, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है प्लेस का। द कैंडिडेट वॉकड इन फॉर द इंटरव्यू। प्लेस, वेयर द कैंडिडेट डिड वॉक इन, अंदर। प्लेस, द बॉय सेट इनसाइड द हट एज इट वॉज रेनिंग। कहाँ पे बॉय बैठा? इनसाइड द हट, इनसाइड प्लेस। दे फॉट ब्रेवली। ब्रेवली, हाउ डिड दे फाइट? ब्रेवली, मैनर। माई कज़न गेव मी हर ईयरफोन्स विलिंगली। कैसे दिए कज़न ने ईयरफोन्स मुझे? विलिंगली यानी अपनी मर्जी से, मैनर। दे रिटर्नड येस्टरडे। व्हेन डिड दे रिटर्न? टाइम। दे विल रीच लेटर टाइम। वो बाद में आएंगे, कब आएंगे? बाद में, तो दिस इज टाइम, लेटर इज टाइम। दीज आर वेरी ईजी, और आप ये बहुत अच्छे से समझ के, मुझे पूरा ट्रस्ट है आप पे कि आप अच्छे से वीडियो देख के ये सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करोगे। एंड नाउ व्हाट इज़ योर होमवर्क? यू हैव टू डू पेज नंबर 119, 120, 21. Only this you have to do in your Spark book, and you have to learn all these degrees of comparison. These are very important. Hard, harder, hardest. यहाँ पे सब में सेम चीज़ अप्लाई होगी। सॉफ्टली, मोर सॉफ्टली, अब ऐसे तो नहीं होगा सॉफ्टलियर, सॉफ्टलीएस्ट, दिस विल बी रॉन्ग। हैप्पी, हैप्पीली, मोर हैप्पीली, मोस्ट हैप्पीली। अगर होता सिर्फ हैप्पी तो उसका होता हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। जैसे केयरफुली है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। सम डिग्रीज आर वेरी डिफरेंट। far, farther, farthest. If you will write further, furthest, it will be also correct. Late, later, latest. Well, better, best. Good, better, best भी होता है। Little, less, least, much, more, most. Badly, worse, worst. Evil, worse, worst भी होता है। ठीक है, तो ये आपको लर्न करनी है, और भी मैं डिग्रीज के अलावा आपको दूंगी जो आपने अपनी नोटबुक पे राइट करनी है। फाइन। और आपकी बुक में भी एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर में एडवर्ब्स की, वो भी हम करेंगे। अभी आज के लिए आपका होमवर्क ये है, ठीक है। आंसर की आपको टुमारो यू विल गेट आंसर की टुमारो। ओके, आई विल सेंड आंसर की टुमारो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।